Hi everyone, welcome to iQuanta. We'll be reading the IIM Bodh Gaya admission policy in this video. It's very important because your admission to JIPMAT does not entirely depend upon how you perform in JIPMAT. Okay, it also depends upon the admission policies of IIM Jammu and Bodh Gaya, which are not exactly the same. Okay, so you should go through it definitely. I have the IIM Bodh Gaya admission policy on my screen. Okay, in which eligibility is written first. This is for the year 26-31. Okay, so if you want to take admission, you have to check this first. Okay, because if you satisfy these eligibility criteria, these requirements, then only you will be getting admission in IIM Bodh Gaya through JIPMAT. JIPMAT is just a paper, okay, which gives you a score. The admission, the rights, those are with the college. Okay, so qualifying exam, you have to pass 10+2. Okay, examination in arts, commerce, science stream. That means any stream, any student from any stream is allowed. Equivalent with 60%, 55% from SC, ST, PWD, transgender or more in the year 2025 or appearing in 26. So this is the thing, okay. If you have passed your class 10+2, that means 12 in year 2025 or you are appearing in 26, then only you are eligible for Bodh Gaya. That means those students who passed class 12 before 2025, if you have passed class 12 in 2024, you are not eligible for Bodh Gaya. What about Jammu? We'll see that later. Okay, in Jammu 2024 students are also eligible. Okay, so we can say that kind of double droppers are not eligible for Bodh Gaya, right? 2025 में आपने 12th पास किया होना चाहिए या फिर 26 में आप इस साल अपीयरिंग होने चाहिए, तभी आप जम्मू में बोध गया में जा सकते हो. कैंडिडेट्स आर लाइकली टू कंप्लीट द 12th बाई 31 जुलाई कैन ऑल्सो अप्लाई, तो हो ही जाएगा, राइट है ना. कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास क्लास 10th एग्जामिनेशन विद 60%, तो मिनिमम 60% फॉर general is required at least, right? In fact, for OBC as well, EWS as well, only these categories have relaxation of 5%. So they are also eligible with 55%. But again, for them also the year of passing should be the same. Okay, I hope that is clear. The percentage of marks obtained by the candidates in class 10 and 12 would be calculated on the basis of board's regulation. If there is no such regulation regarding aggregate marks from the concerned board, then aggregate marks of all the subjects that appear in the grade sheet should be considered. So as I said, अगर आप CBSE वाले हो and आपके पास 6 subjects हैं, then do not put your best 5 का percentage because CBSE itself does not have any regulation for calculation of board's percentage. CBSE क्या कहता है? If you go to CBSE and search this on Google, CBSE says that आप परसेंटेज जिस अथॉरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप रोहतक के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो रोहतक का देयर वाज अ स्पेसिफिक रूल दैट पुट द परसेंटेज ऑफ बेस्ट 5. सो आपने सीबीएसई में इवन दो यू हैड 6 सब्जेक्ट्स, आपने बेस्ट 5 का परसेंटेज डाला एग्रीमेंट रोहतक में. बट सीबीएसई का अपना कोई रूल नहीं है कि आपको बेस्ट 5 का ही मार्क्स निकालना है. ओके, अब जिनके 5 सब्जेक्ट्स हैं वो तो 5 का मार्क्स निकालेंगे, राइट, परसेंटेज. बट जिनके 6 सब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज सीबीएसई का भी कोई रेगुलेशन नहीं है और IIM जम्मू बोध गया ने भी कोई अपनी रिक्वायरमेंट नहीं डाली हुई है कि हमको बेस्ट 5 का परसेंटेज चाहिए, जैसे रोहतक स्पेसिफिकली डालता है, तो आपको परसेंटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डालना है. अगर आपके क्लास 10 में 12 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, उससे ज़्यादा है. 5 वालों का तो खैर ऑल सब्जेक्ट्स 5 ही हो गए, तो वो 5 का परसेंटेज डालेंगे. तो ऑल सब्जेक्ट्स का, ऑल मतलब चाहे 5 है, चाहे 6, चाहे आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं 10-12 के अंदर, आप सबका परसेंटेज डालोगे जो अपीयर हो रहे हैं आपकी मार्कशीट पे, चाहे वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, एडिशनल था, डज नॉट मैटर. अगर उसके मार्क्स आपको मिले हैं, आपको उसके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, आई थिंक दैट इज़ क्लियर. ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं और इस बार ये गलती बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देगी बिकॉज अंटिल लास्ट ईयर जम्मू एंड बोध गया में क्लास 10-12 का कोई परसेंटेज नहीं होता था मेरिट लिस्ट फॉर्मेशन के लिए, कोई ऐसा वेटेज नहीं था. बट इस बार से देर इज़, जम्मू ने अपना स्पेसिफाई कर दिया ऑलरेडी दैट देर इज़ 30% वेटेज ऑफ क्लास 10-12, 15% ऑफ 10th, 15% ऑफ 12th एंड 70% जो है आपका जिपमैट का स्कोर जाएगा. ये सुनो, कोई इंटरव्यू नहीं है, isn't it? So this is very important. Okay, now seats, बोध गया में 120 seats है. Selection process, you have to write the JIPMAT test. After that there will be a merit list formed and in that merit list, I mean the candidates who scored more than or equal to category wise sectional percentile 30 will be eligible for merit list. तो आपकी अपनी सेक्शनल परसेंटाइल, जिपमैट का जब रिजल्ट आएगा तो आपका स्कोर तो आएगा ही आएगा, बट अपना एक सेक्शनल परसेंटाइल भी आएगा. तो जिनका सेक्शनल परसेंटाइल 30 से ऊपर है, ओके, वही एलिजिबल होंगे आगे फर्दर मेरिट लिस्ट के लिए, प्रोसेस के लिए. ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर. नाउ इफ़ यू आस्क मी कि जिपमैट में सेफ स्कोर कितना है, देखो अभी से नहीं बताया जा सकता बिकॉज अभी एग्जाम आउट नहीं हुआ है. क्या पता जैसा लास्ट ईयर पेपर आता था उससे थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, देन कट ऑफ ड्रॉप हो जाएगी. टफ पेपर मीन्स कट ऑफ ड्रॉप्स, ईजी पेपर मीन्स कट ऑफ शूट्स अप. सो अभी नहीं बता सकते, बट अगर हम ये बोलें कि जैसा पिछले 5 साल से पेपर आ रहा है वैसे ही आया, तो आप मान के चलो कि अगर आप जनरल वाले स्टूडेंट हो, जनरल मेल खासकर, आपको 320-330 तक भी लाना पड़ सकता है. ठीक है, इनफैक्ट आई हैव मेड अ वीडियो ऑन IPMAT कट ऑफ, उसमें मैंने हर कॉलेज की कट ऑफ, जम्मू, बोध गया, उनका सबका सेफ स्कोर, इंदौर, हर कॉलेज का मैंने उसमें बताया हुआ है. ठीक है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, यू कैन चेक देयर. ओके,
Now let's go ahead. Okay. Government of India rules for reservation and admission will be applicable for these categories. 70% of seats are general neutral. General neutral का मतलब होता है कि 70% सीट्स किसी को भी दी जा सकती हैं, ठीक है. उसमें गर्ल्स भी आ सकते हैं, बॉयज़ भी आ सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी आ सकते हैं. In case of an optimal number of girls in various reservation categories, they are there in this pool of gender neutral seats. Then the remaining 30% of the seats will be gender neutral. Otherwise, the remaining 30% of seats will be offered as a combination of gender neutral seats and supernumerary seats, SNG seats. This provision of supernumerary seats is to promote a healthy gender ratio. So basically ये है कि IIM जम्मू और बोधगया में काफ़ी ज़्यादा जेंडर डाइवर्सिटी रहती है. जेंडर डाइवर्सिटी मीन्स दे एक्सेप्ट मोर गर्ल्स. ओके, दे एक्सेप्ट मोर गर्ल्स इनटू बैच. ओके, सो 30% सीट्स आप मान के चलो कि लगभग एक तरीके से जेंडर डाइवर्सिटी में रिजर्व्ड है, ठीक है. बट स्टिल 70% आर जेंडर न्यूट्रल एंड उसमें भाई जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको मिलेगा, ठीक है. Sectional raw scores will be submitted to minimum qualifying requirements also. The same will be decided after result based upon ये. यानी कि एक तो आपका आएगा स्कोर, रॉ स्कोर, यानी कि मान लो आपके जिपमैट में 400 में से सपोज 330 आ गए, ये आपका रॉ स्कोर है, यानी कि आपने मार्क्स कितने अर्न करे, ठीक है, कितने मार्क्स आपके आए. बट उसी के बेसिस से परसेंटाइल बनती है. परसेंटाइल बेसिकली सपोज आपकी 95 परसेंटाइल आ रही है, इसका मतलब आप टोटल कैंडिडेट जिन्होंने पेपर लिखा था उनमें से 95% से आगे हो. वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर. बेसिकली सिंपल सा मतलब है, ज़्यादा मार्क्स मतलब ज़्यादा परसेंटाइल. ओके, तो ये चीज़ है. मिनिमम मार्क्स भी होने चाहिए और उसी के हिसाब से परसेंटाइल बनेगी. तो यानी कि ये बात है कि अगर आपका मार्क्स अच्छा है दैट मीन्स आपका परसेंटाइल भी अच्छा होगा. ओके, टाई ब्रेकिंग रूल्स ये तो हर साल ही होते हैं कि सबसे पहले अगर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके टाई हो जाता है बीच में, सपोज उनका जिपमैट स्कोर बराबर आ जाता है, तो जिसका ओवरऑल हायर स्कोर होगा यानी कि जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसको सीट मिलेगी. अच्छा, अगर आपका सबका सेम हो गया, ओवरऑल जिपमैट स्कोर सेम हो गया, तो फिर किसको चेक किया जाएगा? सेक्शनल ऑफ स्कोर ऑफ VRC. जिसका ज़्यादा स्कोर होगा वर्बल में उसको सीट मिल जाएगी. फिर क्या चेक होगा? फिर क्वांट्स. अगर वर्बल का स्कोर भी सेम हो गया तो क्वांट का चेक करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसको सीट मिलेगी. अगर क्वांट का भी सेम हो गया, मान लो आपका ओवरऑल जिपमैट स्कोर भी सेम है, वर्बल का भी मार्क्स सेम हो गया, क्वांट का भी, तो DLR का देखेंगे. अगर ये तीनों सेक्शन स्कोर भी सेम है किसी के और टोटल भी सेम है, देन उसके बाद क्लास 10 का स्कोर चेक करेंगे, जिसका 10th का ज़्यादा होगा उसको मिल जाएगी सीट. अगर ये भी सेम है किसी बच्चे का, दो बच्चों का, ये सब कुछ सेम हो गया टॉप 5, तो उसका 12th चेक करेंगे. ऐसे करके आपका पूरा चेक होता है. टाई ब्रेकर, ये टाई ब्रेकर क्योंकि कई सारे बच्चों के सेम मार्क्स होंगे, है ना. दैट्स इट. नाउ दिस इज एक्सेप्टेंस एंड फ्री विड्रॉल. ये तो सिंपल सी बात है, आपको सीट ब्लॉक करने के लिए अगर आपका एडमिशन हो जाएगा कुछ 90,000 समवेयर अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है. सो देयर इज वन मोर थिंग दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई थ्रू द एंटायर बुलेटिन. पूरे के पूरे बुलेटिन में कहीं पर भी आपका 10th का जो मार्क्स है और 12th का मार्क्स का जो वेटेज है फॉर एडमिशन इनटू IIM बोधगया, दैट इज नॉट रिटन. जैसे जम्मू के एडमिशन पॉलिसी में क्लियरली लिखा था कि 15% वेटेज 10th और 12th दोनों का रहेगा, 30% इन टोटल. इस पूरे के पूरे बुलेटिन में कहीं पर भी क्लास 10 12 का कोई वेटेज यानी कि नहीं है, यानी कि पूरा सोलली आपका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जिपमैट ही होगा. ओके, देयर विल बी नथिंग, इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पर, कोई मेरिट लिस्ट जो है आपका वो नहीं लगेगा, राइट. मतलब मेरिट लिस्ट में हु स्कोर्ड मोर देन इक्वल टू कैटेगरी वाइज सेक्शनल परसेंटाइल विल बी एलिजिबल फॉर मेरिट लिस्ट. यानी कि मेरिट लिस्ट में फॉर्मेशन जो है वो आपका 10-12% नहीं लगेगा, इंटरव्यू नहीं लगेगा. दैट्स इट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनली यही चीज़ें आपके लिए ना सबसे ज़्यादा, देखो इसके अलावा कुछ है भी नहीं बोधगया की एडमिशन पॉलिसी में. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है कि पासिंग ईयर कौन सा अलाउड है. एज आई सेड 2025 में 12th पास कर लिया होना चाहिए या फिर 26 में अपीयर होना चाहिए. जो बच्चे 2025 से पहले जिन्होंने 12th पास किया वो एलिजिबल नहीं है बोधगया के लिए. तो चाहे आप जिपमैट दोगे बट आप किसके लिए दोगे? जम्मू के लिए. जम्मू का क्या है? जम्मू 2024 या लेटर, यानी कि अगर आपने 2024 में 12th पास किया था तो भी आप एलिजिबल हो जम्मू के लिए. तो जिपमैट से दो कॉलेजेस में एडमिशन होता है, जम्मू और बोधगया में, राइट. आई होप दैट इज क्लियर. दैट्स ऑल विद द एडमिशन पॉलिसी ऑफ IIM बोधगया, ठीक है. तो 2024 में जिन्होंने अपना 12th पास किया वो इसके लिए एलिजिबल नहीं, यानी कि वो चाहे जिपमैट में कितना ही मार्क्स ले आए उनको बोधगया में एडमिशन नहीं मिलेगा. ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरीज. उन्होंने कुछ अलग से नहीं लिखा है कि SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है या वो लोग पहले पास करे होंगे 2023 में तो भी चलेगा, नथिंग लाइक दैट. ओके, सो ये हो गया क्लियर आपका बोधगया का. अब बोधगया में 10th से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा हुआ है, इजंट इट. देखो 10th, अच्छा 10th से रिलेटेड भी लिखा हुआ है नॉट बिफोर 2023. ओके, सो 10th भी आपका नॉट बिफोर 2023 होना चाहिए. अगर आपने 2023 से पहले पास किया 10th बट आपका 12th बिल्कुल सही चल रहा है, 12th बिल्कुल सही है, सपोज आप 2026 में 2025 में 12th पास करके आए बट आपका 10th अगर 2023 से पहले हुआ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो. तो ये दोनों कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है. ओके, यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ वाला इशू नहीं है, ठीक है, बट ये इशू यहाँ पर है. दैट्स द एडमिशन पॉलिसी ऑफ IIM बोधगया. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी अपडेट्स. फर्दर विल बी कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ मैराथॉन्स एज वेल. ओके, अगर आप लोग डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाहते हो, अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हो कि आपके पास ऑलमोस्ट
1.5 से ज़्यादा मंथ है जिपमैट की प्रिपरेशन के लिए, जो कि इनफ है, बिकॉज जिपमैट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। इंदौर में आपको काफ़ी डेप्थ में जाना होता है चीज़ों में, जिपमैट में उतना नहीं है। इनफैक्ट बिफोर दिस वीडियो आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन जिपमैट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें पेपर में क्लियरली लिखा था कि जो क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के अंदर वो क्लास 10th के लेवल के पूछे जाएंगे, यानी कि 10th सिलेबस से पूछे जाएंगे। लेवल तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट सिंपली मीन्स कि हायर मैथ्स 11th 12th की मैथ्स आने वाली नहीं है ना। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि देयर इज अ क्रैश कोर्स ऑफ iQuanta गोइंग ऑन, इफ यू वांट टू टेक इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें कॉल भी कर सकते हो, पिन्ड कमेंट्स में भी लिंक है, ठीक है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।